three inequalities. आप तीन inequalities को find करें तो step one is remember that in inequalities find equation of lines. Find equation of lines. So the first equation of line is we have is this horizontal line, and this horizontal line is crossing from 3. So the equation of this line is y equals 3. Okay, the second equation of line do we have is this one. This is a vertical line crossing from x equals 5. So the name of this line is x equals 5. So what about the third line? Third line क्या है बेटा आपकी? Third line होती है आपके पास यहाँ पे जो third line शो हो रही है वो ये है. So it is y is equals to mx plus c. तो ये क्या है बेटा? Y equals mx plus c. We are going to find this. So now you can see one thing very well, that the line is crossing from 1. So it means that the value of c is plus 1. Let's find out the gradient now. Gradient is rise divided by run. So this is 3 rise and this is 3 run. So 3 divided by 3 is 1. So the equation of line is y is equals to x plus 1. Now we got the three equation of lines. Now find the shaded region is defined by these inequalities. Okay, look at the first line, which is y is equals to 3. This is above this line. So this is y is greater than or equals to 3. Okay, now this region is left side of this vertical line. So it is x is less than or equals to 5. And this red line is, this region is below this red line, not above. So this would be y is less than or equals to x plus 1. 3 marks. Okay. Now they say that the first is Q is a subset of P and P intersection R is 0. Okay. So this symbol means Q is a subset of Q is a subset of P. It means that Q will be inside P. That would be Q. And P intersection R is empty set. So R will stay outside. Complete the Venn diagram to show set Q and R. Done. 2 marks. Here are the first 4 terms of this number sequence: 4, 12, 22, 34. What is T5? So you can see one thing, that you can write that T power 4, this would be T power 5. So here it is 4. So I'm going to write 5 square plus. Now what is happening here? It's plus 5. Agree or not? 5 square plus 5. So what is happening here? 5 square is 25. Sorry, it's not plus 5. 18 plus 5 is 23. So 25 plus 23. So 25 plus 23 is how much? 25 plus 23 is 48. So T5 is 48. Actually, find an expression for Tn. Find an expression for Tn. आप लोग इतनी देर निकालें सर, मैं कुछ काम कर रहा हूँ यहाँ पे. ओके जी, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टी एन. सो आपको आइडिया होना चाहिए कि टी एन निकालने का तरीका क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडिया क्लियर लगाना है थोड़ा स्टार्टिंग से ही, थोड़ा सा. ठीक है, कि दैट दिस सीक्वेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पर्टिकुलर सीक्वेंसेस. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेइंग दैट टी पावर एन इट इज एन स्क्वायर. यहाँ पे तो एन स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, n square plus what? So first of all, you need to understand one thing, that what is n square plus what. So I need to find the formula for this sequence. मुझे इस sequence का formula निकालना है. So this sequence is 3, 8, 13 and 18. It is add 5, add 5, add 5. So this is what? 5n. 5 ones are 5. 5 minus 2 is plus 3. 5 twos are 10, 10 minus 2 is 8, 5 threes are 15, 15 minus 2 is 13. It is n square plus
5n-2, that is what the final answer is. चेक कर लें, n की जगह पे 1 डाल के देखते हैं. 1 square plus 5 into 1 minus 2. 1 square is 1. 1 plus 5 6. 6 minus 2 is 4. बिल्कुल ठीक है हमारा. हमने t की n की जगह पे 1 डाला, हमारा 4 आ गया. n की जगह पे आप 2 डालें तो वो 12 भी आ जाएगा. So the formula is n square plus 5n minus 2. Remember one thing बच्चा, पेपर में आपको एग्जामिनर P1 में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देता जितना आप सोच रहे होते हो. तो याद रखें, कोशिश करें हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करनी. ठीक है. अच्छा जी, प्रोसीडिंग. द डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ. अच्छा छोड़ें इसको, थोड़ी देर छोड़ते हैं, देखते हैं आखिरी क्वेश्चन कौन सा है. वेक्टर. वेक्टर इजी है, वेक्टर पहले खत्म कर लो. कहता है पी. अच्छा जी, वो कहता है पी क्या है बेटा, पी है आपके पास. अच्छा, पी अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पी का अगर वेक्टर बना लूँ तो वेक्टर मेरे पास पी का बन रहा है. और वो कहता है ऑन द ग्रिड ड्रॉ द वेक्टर 3p. ओके, तो 3p पहले बनाते हैं. पहले पी का देखते हैं कि पी क्या चीज़ है. पी बेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है. ये स्टार्ट है और ये एंड है. तो बेटा पी का जो वेक्टर है ना, पी का जो वेक्टर है वो है टेक्निकली, थोड़ा सा समझा रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ थोड़ा सा, इट्स 2 राइट एंड 1 अप. ठीक है. तो वेक्टर ऑफ पी इज 2 राइट एंड 1 अप. तो 3p कितना हो जाएगा बेटा, 3p कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा 3 के साथ p को मल्टीप्लाई करो. तो 3 2 6 एंड 3. तो 6 राइट एंड 3 अप. तो कहता है ऑन द ग्रिड ड्रॉ द वेक्टर 3p. तो चलो जी लगा लेते हैं. यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करूंगा. ठीक है भाई. ओके 3p, सो इट्स 6 टूवर्ड्स राइट. तो बेटा 6 टूवर्ड्स राइट, 1 2 3 4 5 6, 6 टूवर्ड्स राइट एंड 3 अप. 1 2 3, 3 अप आ गया. तो अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसका एंड. तो बेटा इसको अगर हम ज्वाइन कर लें ना, ये वाला वेक्टर, तो ये वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है 3p. अब वो कहता है कि ड्रॉ करो q माइनस पी. अब q माइनस पी है क्या, पहले q देख लेते हैं कि q वेक्टर क्या चीज है. q, दिस इज द स्टार्टिंग एंड दिस इज द एंडिंग, क्योंकि एरो ऐसे जा रहा है. सो स्टार्टिंग टू एंडिंग इट इज 1 राइट एंड दिस इज 3 डाउन. सो 1 राइट एंड 3 डाउन. अब q माइनस पी करना है, तो पहले लिखते हैं हम q माइनस पी. q क्या है बेटा, 1 माइनस 3 है. माइनस p क्या है बेटा, p है 2 1. सो 1 माइनस 2 कितना होता है बेटा, -1 होता है. -3 -1 कितना होता है बेटा, -4 होता है. इसका मतलब है -1 और -4 हमें ड्रॉ करना है. अब -1 और -4 हमें ड्रॉ करने के लिए q माइनस पी देख लें बेटा. q माइनस पी, तो 1 माइनस 2 इज -1, -3 माइनस 1 इज -4, दैट इज फाइन. अब मैंने ये भी ड्रॉ करना है q माइनस पी. अब मैं q माइनस पी कैसे ड्रॉ करूंगा जरा देखें बेटा. यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये मेरा है स्टार्ट और एंड लेना है मुझे यहाँ पे. सो इट इज 1 लेफ्ट एंड 4 डाउन. सो इट इज 1 लेफ्ट. 1 लेफ्ट लेता हूँ पहले मैं आपके लिए, आपको समझाने के लिए. तो ये ग्रीन से ले लेते हैं. सो इट्स 1 लेफ्ट. ओके, एंड नाउ 4 डाउन. ओके, नाउ दैट इज 4 डाउन. सो दिस इज व्हाट माय एंड इज. सो जस्ट क्या करना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रॉ करो, एरो लगा दो. और यहाँ पे इसके ऊपर एक एरो और एक से लगा दिया मैंने, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज q माइनस पी. सो एग्जामिनर ने कहा था कि ऑन द ग्रिड ड्रॉ द वेक्टर, हमने ड्रॉ कर दिया 1 1 मार्क के लिए. इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस इसमें है नहीं. ठीक है जी, इतनी कोई बड़ी इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, और आई होप कि सबको समझ आ रही है. ऐसा ही है, मैं चैट ओपन नहीं कर सकता क्योंकि कुछ लोगों ने मेरी क्लास का फिर वो बेड़ा गर्क कर दिया, तो इसलिए मैं चैट ओपन नहीं कर सकता यहाँ पे भी स्क्रीन पे. चलें जी. अच्छा, क्वेश्चन 20 फिर रीडिंग है. क्वेश्चन 20 के बजाय देखते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. टोटल 25 क्वेश्चन ही है, 21 तक हम पहुंच चुके हैं. अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल 2x स्क्वायर x पावर 5 होल पावर -3. नाउ यू कैन सी दैट पावर इज नेगेटिव. पावर इज नेगेटिव. जब आपका पावर नेगेटिव हो, जस्ट फ्लिप द क्वेश्चन, flip the fraction to change it to positive, to change it to positive, ताकि पॉजिटिव में चेंज हो जाए.
तो हम लोग क्वेश्चन को फ्लिप करते हैं, x पावर 5 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, और बायर आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी अब, ठीक है, इट्स अ शॉर्टकट। नाउ डिस्ट्रीब्यूट द पावर, इट वुड बी x पावर 5 होल पावर 3 divided by 2x square whole power 3. Now that would be x power 15 divided by, now distribute the power, 2 cube x square whole cube, x power 15 divided by 2 cube is 8 and x 6. Now this is not done, still you have this x 15 and x 6 same, ये दोनों सेम है आपके पास। तो आपने लिखना क्या है, x पावर 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8, तो x पावर 9 डिवाइडेड बाई 8 इज द फाइनल आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं, जो मेथड आपको समझ आए आप लोग उस मेथड पे चलो। जो मेथड मैं इजी समझता हूँ बच्चों के लिए, ताकि क्योंकि नेगेटिव पावर जो है ना आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में ही यहाँ पे -3 2 के ऊपर डाल देता तो वो 2 पावर -3 आता, फिर 2 पावर -3 हम 1/8 लिखते, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता क्वेश्चन। तो इसीलिए कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, टू अवॉइड एरर वी प्रोसीड दिस वे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 जरा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22 में इस दफा एक और चीज भी आएगी, वो भी मैं कराता हूँ यहाँ पे, इसी पेपर क्वेश्चन में करा दूंगा। कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सीख लो। 4 स्टेप है। स्टेप 1, लेट एफ ऑफ एक्स फंक्शन इक्वल्स वाई। तो ये हो गया बेटा वाई इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। सेकेंड स्टेप, मेक एक्स द सब्जेक्ट, मेक एक्स द सब्जेक्ट, एक्स को आपने सब्जेक्ट बनाना है। तो मैं एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए पहले एक्सपेंशन कर लेता हूँ। तो 4 3 12 माइनस 4x, -4x को यहाँ पे ले आए तो ये हो जाएगा +4x, और 12 -5। अब डिवाइड बाय 4 कर लें, सो x इज इक्वल टू 12 माइनस 5 डिवाइड बाय 4। आपका x जो है वो सब्जेक्ट बन गया। थर्ड स्टेप है बेटा, रिप्लेस x विद y, रिप्लेस x विद y। तो ये हो जाएगा बेटा y इज इक्वल टू 12 माइनस x डिवाइड बाय 4। ये हो गया बेटा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है सॉल्व जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6। ओके, जी एक्स बेटा पेपर के अंदर किसके बराबर है, जी एक्स बेटा बराबर है 5 इंटू 3x माइनस 2 होल बाई एक्स के बराबर है। अब वो कहता है कि ये चीज बराबर है 6 के, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे ये x यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसको इक्वल टू के साइड पे लाओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 15x माइनस 10 इक्वल 6x। अब 15x ऑलरेडी पॉजिटिव है, 6x को यहाँ पे लाओ, 15x माइनस 6x इज इक्वल टू +10। यहाँ पे आगे बेटा 9x इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 10/9। तो x की वैल्यू आ रही है बेटा 10/9, तो ये आपका फाइनल आंसर है फॉर 3 मार्क्स। अब एक चीज को जरा जरूर अंडरस्टैंड करना, इस दफा पेपर में एक नई चीज शामिल हुई है और वो आपको पेपर में आ सकता है। अब वो क्या हो सकता है, वो कुछ ये होगा, वो ये होगा, लिखा होगा पार्ट सी f(g(x). अब वो कहेगा f(g(x) फाइंड करो। इसको कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को पुट करना। अब वो कैसे होता है, पहले आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपके सामने है, लेकिन इसको जरा मैं एक्सपैंड कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए दोबारा ही। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 4x, और ये मैंने एक्सपैंड कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 4x। नाउ x की जगह पर आई एम गोइंग टू राइट जी एक्स, सो इट वुड बी 12 माइनस 4 इंटू जी एक्स, लाइक दैट। Now, on right side, you are going to put the value of gx which is given in the question. Question में आपको given है, तो ये कितनी है, इसको expand करके लिखो, ये आता है 15x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x। तो अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 15x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x। 12 माइनस 4 नहीं करना है यहाँ पे, ये याद रखना है, पहले 4 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो 12 माइनस, अब 4 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 15 जार 60x माइनस 40। ये अभी मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये नया पार्ट है, पेपर में इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि इट्स अ न्यू क्वेश्चन। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जिसको नहीं आता कॉम्पोजिट फंक्शन का वीडियो मैंने लाइव किया हुआ है, आप देख सकते हो उसको। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी आपको कहा कि यहाँ पे बटरफ्लाई मेथड करें तो बहुत इजी रहेगा, आपको अलजेब्रा में गलती का चांस आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बटरफ्लाई मेथड को हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि 12 माइनस हो रहा है इस फ्रैक्शन के साथ, तो यहाँ पे बटरफ्लाई मेथड बनेगा 1 इंटू एक्स इज एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स आ जाएगा, दरमियान में हम माइनस लगा देंगे,
अच्छा 12 मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये आ जाएगा 12x। ओके 60x - 40 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 60x। और ये माइनस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डू कंसिडर दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, +40 आएगा, माइनस नहीं। ठीक है, ये चीज का, इस चीज का पूरा पूरा ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -48x +40 डिवाइडेड बाय x। ये एक एक्स्ट्रा पार्ट मैंने करवाया है क्योंकि पेपर में कंपोजिट फंक्शन जो है ना अभी कोर्स का हिस्सा है, तो यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन दैट। आगे चलते हैं जी। एक्सप्रेस सिंगल फ्रैक्शन एंड सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देख ले, मैंने आपको जो बार बार मैं बटरफ्लाई की बात करता हूँ, बटरफ्लाई आपको अलजेब्रा में बहुत हेल्प करेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने करना क्या है, जस्ट ड्रैग अ लाइन, आप लाइन लगा लो। ठीक है, मैं पहले टाइम से बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। और अलजबरा में इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट ब्रैकेट लिखनी है, तो ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन है, नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 मल्टीप्लाई होगा x+4 के साथ, और 3 मल्टीप्लाई होगा 2x - 1 के साथ। याद रखो, सिंगल फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते वक्त अगर अलजबरा का क्वेश्चन आ जाए तो डू नॉट एक्सपैंड द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को एक्सपैंड नहीं करना, एज इट इज लिखते रहें बार बार। सो 2x - 1 and x+4, so that would be 5x + 20 -6x + 3। 5x अरेंज कर लें तो बेहतर है ताकि गलती ना हो। 2x - 1, और यहाँ पे आ गया x+4, तो 5x - 6x इज -x + 23 डिवाइडेड बाय 2x - 1 एंड x+4। बस ये आपका फाइनल आंसर है। नो नीड टू एक्सपेंड द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने एज अ सिंगल फ्रैक्शन लिखना था और वो हमने लिख के दे दिया। अगर आप एक्सपेंड करेंगे डिनोमिनेटर को तो वो कुछ भी नहीं, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन देख लें बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। पिछले 4-5 दिनों से मैं बड़े बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, लेक्चर्स जो हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ग्रुप में भेज चुका हूँ। ठीक है, सो डू मेक श्योर कि आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है ना वो आना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं आता तो वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, सो रिमेंबर वन थिंग। एक मिनट यार, चलें जी। P is the point h7 and P lies on the line 3y plus 2x equals 5. Now find the value of h. Okay, so P is the point and it lies on this line. Okay, so now remember one thing. In Cambridge examination, we have only one line which is y equals mx plus c. ठीक है? Whenever you see a coordinate geometry question, especially in P1 non-calculator paper, make y the subject. Okay? So what I'm going to do is 3y is equals to -2x plus 5. Now divide by 3 on both sides. 5 would be equals to -2 by 3x plus 5 over 3. मैंने ये क्यों किया? Because examiner will be asking some questions on the basis of this line. Find the value of h. Value of h क्या है आपका? बेटा आज की क्लास में मैं ज़्यादा क्वेश्चंस इंटरटेन नहीं कर रहा आप लोगों के। उसका रीज़न ये है कि मुझे अगले क्लास लेने से पहले थोड़ा सा सिस्टम को सेट करना पड़ेगा, ताकि जहाँ पे मैं क्वेश्चंस देख भी सकूं, आप लोगों के माइक ओपन भी करवा सकूं, और वहाँ पे फालतू एंट्रीज को हम रोक भी सकें। ठीक है, सो ये ओपन क्लास रखने का नुकसान ये होता है कि यहाँ पे फिर हर लल्लू जो है ना वो क्लास में आ जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। सो पी इज h and 7। बेटा h and 7 कोऑर्डिनेट जो होता है ना, दिस इज x एंड दैट इज y। हमें x और y, तो x की जगह पे h पुट करना है और y की जगह पे 7। सो y की जगह पे 7 और x की जगह पर एच पुट करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में, ताकि हमें इसका आंसर मिल जाए। अच्छा, अगर इसी कोऑर्डिनेट को हम फिलहाल इसी में पुट कर दें तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि वहां पे हमारा फ्रैक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसी में पुट कर देते हैं। सो पुट वैल्यूज ये हमारे काम जरूर आएगा, आपको मैं बता रहा हूँ। अभी अगला पार्ट मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन हमेशा ये काम आता है, तो इसीलिए दिस इज मैंडेटरी, कर लिया करो। 3y, 3 into 7 plus 2x, 2 into h equals 5. 3 sevens are 21 plus 2h equals 5. Okay.
So 2h is equals to 5 minus 21. 2h is equals to 5 minus 21 is 16, negative 16. So h is equals to minus 16 by 2. So the value of h is minus 8. All right. Line L is perpendicular to the line and passes through P. Okay, तो कहता है line L जो है ना वो perpendicular है इस लाइन के। इस लाइन का नाम मेरा बच्चों यहाँ पे इसका लाइन का नाम है 3y plus 2x equals 5 है। कहता है लाइन L is perpendicular to this line। ओके, perpendicular बेटा कुछ ये चीज होती है, ठीक है, ये perpendicular लाइन है। ओके, और वो कह रहा है कि लाइन L is perpendicular to this line and passes through P। तो ये P कहीं भी हो सकता है इस लाइन पे, चाहे वो यहाँ पर है कि चाहे वो वहां पर है। अच्छा, अब P जो है वो उस लाइन पे भी लाइक कर रहा है, तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, दरमियान में नहीं। ओके, एंड इट पासेस थ्रू पॉइंट पी। ओके, पॉइंट पी इट लाइज ऑन बोथ लाइंस। ठीक है, इसका मतलब है दोनों लाइनों के ऊपर लाई करता है। ये पॉइंट पी ब्लू पे भी है और डॉटेड पे भी है। सो यहाँ पे पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया है -8 और y की वैल्यू है 7। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। ओके, सो दिस इज माई लाइन एल। बेटा m1 जो है इज ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट लाइन, मतलब कि ब्लू लाइन। और विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट मेकिंग वी गॉट दिस आइडिया अर्लियर, -2/3। आप में से जितने बच्चों के भी जो क्वेश्चन है जरा होल्ड करो, बाद में अगर हो तो मुझे इनबॉक्स कर देना, मैं एक एक को वॉइस नोट कर दूंगा, लेकिन मैं भी क्लास के दौरान चैट बॉक्स ओपन नहीं कर सकता। सो माई ग्रेडियंट इज -2/3। So equation of the perpendicular line will have the theorem m1 into m2 equals -1. m1 is -2/3, m2 is equals to -1. So m2 is equals to -1 multiplied with 3 by -2. So minus minus cancelled. So my m2 is equals to 3/2। अच्छा, इसका भी एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट भी समझा देता हूँ, अगर समझ आ जाए तो बहुत गुड हो जाएगा। कि if your m1, whatever your m1 is, just take the reciprocal of m1. So -2/3, reciprocal of 2/3 would be 3/2, and change in sign. So you can see one thing, that this is 2/3 and this is 3/2, the reciprocal, and change in sign. If this is minus, so that would obviously be plus. That is what the shortcut is. So equation of the line would be y equals mx plus c. So 3/2x plus c. Now to find c, put p, and p is -8 and 7. So y की जगह पे 7 डाल दो, 3/2, x की जगह पे -8 डाल देना। बेटा 2 और 8 जो है ना वो कटता है, 2 1 2, 2 4 8। ओके, सो 7 इज इक्वल टू 3 टाइम्स -4 इज -12 प्लस सी। -12 यहाँ पे आएगा, तो 7 + 12 इज इक्वल टू सी। तो सी इज इक्वल टू 19। सो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी y इक्वल्स m क्या है बेटा, 3/2 है, x c क्या है बेटा, +19। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। Question number 25 is printed on the next page. Okay, so this question is out. Matrices are out from both the syllabuses. IGCSE में भी तो पहले से नहीं है, O levels में भी आउट हो गया। चलें जी, देखते हैं अब हमने और क्या क्या छोड़ा हुआ है। ओके, हमने एक ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। ओके, चलो शुरू से देख लेते हैं जरा। 12 बजे पेपर स्टार्ट किया था, 1 बज गया है तकरीबन, और 1 घंटे में आपको पढ़ाने के साथ साथ थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद हमने पेपर अटेम्प्ट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 plus 3 31 31 plus 2 33 plus 1 34 37 37 plus 2 39 39 plus 2 41 plus 2 43 43 plus 3 is 46 plus 3 is 49 plus 2 51 51 plus 4 55। 55 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया। एंड रिमेंबर दैट बेटा ये वाला जो पेपर है 80 मार्क्स का है, ठीक है। तो 80 में से देखिए 55 मार्क्स का पेपर हमने मोर देन हाफ पेपर अटेम्प्ट किया, और मैं आपको पढ़ा भी रहा था इसमें, ठीक है। तो याद रखिए कि आपने इसी तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड करना है। ओके, लेट्स प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 18।
अच्छा चलें शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो बस उधर से ही स्टार्ट करते हैं ताकि खत्म हो जाए हमारा पेपर। चलें जी, ताकि एंड तक हम पहुंचे तो खत्म हो जाए पेपर। चलें जी, दे से दैट क्वेश्चन नंबर 9 बेरिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन कैलकुलेटर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। द स्केल ड्राइंग शोज द पोजीशन ऑफ टाउन ए एंड टाउन बी एंड द स्केल इज दैट 1 सेंटीमीटर ऑन मैप। इसका मतलब क्या, पढ़ते कैसे हैं? अच्छा, ये पढ़ने का तरीका भी सीखो। इधर लिखा करो 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, 2 की जगह पे लिख दिया करो रिप्रेजेंट्स 10 किलोमीटर इन रियलिटी। इसको ऐसे पढ़ते हैं तो बस समझ आ जाती है बंदे को कि 1 सेंटीमीटर जो मैप के ऊपर है ना, वो 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगा रियलिटी के ऊपर। ओके, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी। तो आपने रूलर के जरिए मेजर करना है। मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर रूलर रखूंगा, वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन पेपर के ऊपर ये आप लोगों को इजी वैल्यूज देगा। तो मैं यहाँ पे ए के ऊपर 0 सेट करके यहाँ पे मैं वैल्यू को यहाँ पे लेता हूँ रूलर के जरिए। ट्राई टू मेंटेन एक्यूरेसी। अच्छा, एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ओके, मेरे पास आ रही है 8.1 2 3 4 5, मेरे पास 8.5 आ रहा है, ठीक है। आईपैड पे ये डिफरेंट हो सकता है। तो 8.5 इज द डिस्टेंस। सो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10, so 8.5 times 10 would be 85 kilometers according to my situation here. So let me just join this with this one. तो रूलर ही लगाना पड़ेगा। कोशिश करा करें बेटा, मेरी क्लास में वही बच्चा आया करे जो पढ़ने वाला है। जो पढ़ने वाला नहीं है बस वो ना आए, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होती है, पढ़ने वाले बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, अब वो क्या कहता है, पार्ट सी। पार्ट बी, टाउन सी इज ऑन अ बेरिंग ऑफ 140। ओके, क्या कहते हैं 140 फ्रॉम टाउन ए। इसका मतलब है कि टाउन ए पे नॉर्थ लगाएं एंड लुक एट टाउन सी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लुक एट टाउन सी फ्रॉम ए इज 140 डिग्रीज। ओके, सो लुक एट टाउन ए, ये बन गया। अच्छा, 140 डिग्रीज, तो मुझे यहाँ पे ए के ऊपर आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ प्लस। मैं यहाँ पे एक प्लस बना दूंगा, क्योंकि प्लस से एंगल निकालना बड़े आसान होते हैं, ठीक है। Now we know everybody that this angle is 90. So I need 140 degrees. तो 140 minus 90 is 50 degrees. तो नीचे की तरफ मैं 50 डिग्री लगा दूंगा, ठीक है जी। तो लेट मी रोटेट द रूलर नाउ। मैं रूलर को थोड़ा सा रोटेट करता हूँ ताकि नीचे मुझे 50 डिग्री माइनस हो जाए। तो 180 था, 180 में से 50 माइनस 130 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रूलर पे कर रहा हूँ, आप लोगों ने प्रोटेक्टर सेव करना है अच्छा पेपर में। तो ये हो गया बेटा 50। सो लेट मी जस्ट मार्क हियर। मैं खाली यहाँ पे एक मार्किंग लगा देता हूँ। ओके, मार्किंग मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब ये एंगल 150 है। वी जस्ट फाउंड इट विद द हेल्प ऑफ अ रूलर हियर। आपके पास कीबोर्ड में कैलकुलेटर हो, प्रोटेक्टर होना चाहिए ताकि आप ये लगा सको। तो ये दिस इज 140 डिग्री। 90 प्लस 50 जो है वो 140 डिग्री आया मेरे पास। अच्छा, एंड द बेरिंग ऑफ 235 फ्रॉम बी। ओके, तो इसका मतलब है अब बी के ऊपर नॉर्थ लगाएं एंड 235 डिग्री का एंगल लगाना है। to look at C. So B के ऊपर ये this is B north and 235 and bearing is always clockwise, always clockwise. So we got the idea that this angle is 180. So 235 minus 180 is 55. Yes, 55. तो इसका मतलब है कि मुझे राइट साइड पे 55 डिग्री का एंगल चाहिए। तो आई नीड 55 डिग्री एंगल। तो 90 पे मैं रिवर्स किया तो 90 माइनस 35 इज 55। तो मुझे 35 डिग्रीज रोटेट करना है। तो ये मैंने यहाँ पे किया ताकि मैं 55 ले सकूँ यहाँ पे। या रूलर इज 35 डिग्री सेट। सो लेट मी जस्ट ड्रा द लाइन हियर। डन। सो दिस एंगल इन फ्रंट ऑफ यू इज नाउ 235 degrees. Okay, mark the position. Okay, one blue line is coming from this point and this point is coming from this point. So this is the point where your town C is available. So that's how we mark the town C. So करना क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। Town C is on a bearing of 140 from A. Stand at A, mark angle of 140 with protector, and drag a line. Then and on a bearing of 235 from B, so stand at B and mark angle 235.
So I have marked it and extend the lines wherever it crossed. So that is what the final answer is. ठीक है, एक मिनट के लिए देखें, मैं जरा कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे वो देख लूं सर। अच्छा जी, मुझे कुछ बच्चों के मैसेज आ गए कि बेरिंग जो है ना दोबारा करा ले। तो बेरिंग जो है हम दोबारा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो जिनका भी मैसेज आया है, तो मैं बेटा सबके मैसेज की कदर करता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे अभी आज जरा कुछ इस तरह करना पड़ रहा। अच्छा, टाउन सी इज ऑन अ बेरिंग ऑफ 140 फ्रॉम ए। तो इसका मतलब है कि आई विल स्टैंड एट ए एंड आई विल लुक एट सी। मैं सी की तरफ देखूंगा, ठीक है। तो मैं जरा यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ पहले खुद ही। ओके, ये मैं खड़ा हो गया, ठीक है जी। तो मुझे देखना है 140 डिग्रीज। तो मुझे 140 डिग्री करना है, तो याद रखें आप लोगों के पास पेपर में प्रोटेक्टर अलाउड होता है। तो आपने प्रोटेक्टर जो है ना वो यहाँ पे रखना है, ठीक है। और प्रोटेक्टर जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको इजी आइडिया क्लियर हो जाएगा कि 140 डिग्री जो है आपका कहाँ पे आएगा। अच्छा, एक मिनट अगर मुझे देते हैं तो मैं ज़रा एक प्रोटेक्टर की पिक्चर डाउनलोड कर लूँ ज़रा, एक मिनट में। वो हमारी हेल्प कर जाएगा यहाँ पे। प्रोट्रैक्टर, एक प्रोटेक्टर की पिक्चर मैं ज़रा डाउनलोड कर लूँ तो वो हमारी हेल्प कर जाएगा। डन, सेव्ड फोटोज। चलिए जी, अब हो गया ना हमारा काम आसान। तो आपने प्रोटेक्टर को रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी ओपेसिटी है ना इतनी नहीं है। सब अगर मैं देखता हूँ शायद मैं इसको ओपेसिटी भी इसकी कम कर सकूँ ताकि ये ब्लर हो जाए थोड़ा सा। हम्म, चलो ये बाद में देखेंगे यार कि इसको कैसे करना है। अच्छा जी, यू हैव टू प्लेस द प्रोटेक्टर। आपने प्रोटेक्टर का जो प्लस साइन है ना बिल्कुल ए के ऊपर रखना है, जैसे कि मैंने अब रख दिया। अब मुझे यहाँ पे 140 डिग्रीज लेना है। तो बेटा यहाँ पे देखो 140 डिग्रीज, अब यहाँ से 140 देखना यहाँ से। अच्छा, तो ये आ रहा है बेटा 140 कुछ यहाँ पे। तो मैं यहाँ से जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक लाइन यहाँ पे बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि अभी हम यहाँ से पिक्चर हटाएंगे, ठीक है। तो जब मैं पिक्चर हटाऊंगा यहाँ से तो फिर वो थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो मुझे यहाँ पे लाइन मिल गई। ओके, आई हैव द लाइन नाउ। सो आई होप बेटा सबको समझ आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरी लिमिटेशन है कि मुझे यहाँ पे लाइन जो है इस तरीके से रखनी है। तैयबा बेटा आपको समझ आई है? जस्ट रिप्लाई मी, आई एम वॉचिंग योर चैट। ओके चलो, दैट्स गुड। चलिए, अब देखते हैं जी वो क्या कह रहा है। फिर वो कहता है कि टाउन सी इज ऑन अ बेरिंग ऑफ 140 फ्रॉम ए। ओके, ए तो हो गया। अब वो कहता है कि टाउन सी जो है इज ऑन अ बेरिंग ऑफ 235 फ्रॉम बी। अब मैं बी पे खड़े होने वाला हूँ, ठीक है। अब मुझे बी पे खड़ा होना है, तो बी पे मैं अपने आप को खड़ा कर दिया, ठीक है। अब 235 का मतलब है बेटा, 235 एक बड़ा एंगल होता है और प्रोटेक्टर पे होता ही नहीं। तो यहाँ पे इतना आइडिया होना चाहिए कि 235 मतलब ये तो 180 है। तो 235 में से हमें 180 को करना है माइनस। तो जब हमने माइनस किया तो वो 55 डिग्रीज आ रहा था। अब उस 55 डिग्रीज को यहाँ पे प्लॉट करने का तरीका क्या है, ठीक है। डिलीट। ओके चलिए, ये हो गया डिलीट। अभी हम दोबारा लेते हैं, प्रोटेक्टर को लाते हैं यहाँ पे। ओके, अब मुझे चाहिए 55 डिग्री का एंगल। तो मैं यहाँ पे बी के ऊपर रखूंगा 45 डिग्री का एंगल। तो ये मैंने कर दिया अब बी पे सेट। अच्छा, अब यहाँ पे 55 डिग्री का एंगल जो है ना, ये देखो 50 आ रहा है, और ये 50 के बाद जो है ना ये 55 है। तो मैं यहाँ से थोड़ी सी लाइन बाहर निकाल देता हूँ, ताकि मैं अगर इस शेप को आउट करूँ तो मुझे यहाँ पे कोई इतना प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे हो गया बेटा ये आउट, ये हमने कर दिया बाहर। तो ये हमारी लाइन जो है वो ये वाली है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ रूलर जो है मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ लाइक दिस। आई होप मेरा बच्चा सबको समझ आ गया कि टाउन सी मैंने कैसे मार्क किया है। चलें जी, ये तो हो गया भाई। चलें जी, अब वो कहता है कि क्वेश्चन 10, बिलाल गोज ऑन अ साइकिल राइड एंड इट स्टार्ट्स एट 3 PM। 3 बजे ये साइकिल राइड जो है ना वो स्टार्ट हुई है।
and he starts at 3 p.m. and he finishes at 5:35 p.m. He has a total of 25-minute rest during the ride. Work out the how long in hours and minute he spent cycling. First of all बेटा यहाँ पे अंडरस्टैंड जरूर करें. 3 p.m. का मतलब होता है 3 बजे दोपहर में, ठीक है. एंड ही फिनिशेस एट 5:38. 5:38 उसने फिनिश किया है. सो द डिफरेंस इज व्हाट इज द डिफरेंस? कॉमन सेंस, पेपर 1 है, इतना मुश्किल नहीं होगा. It's 2 hours and 38 minutes. That was the difference. He has a total of 25-minute rest during the ride. Work out how long in hours and minutes he spent cycling. So minus 25 minutes, please. So it would be 2 hours and 38 minus 25 is how much? 38 minus 25 is 13. I hope I'm right. अगर कोई arithmetical error हो जाए तो बेटा माफ करना. So it's 2 hours and 13 minutes. अब यहाँ पे 0 to hour नहीं लिखना. अच्छा, वहाँ पे वो टाइम मांग रहा है. वो कह रहा है कि कितना टाइम लगा है. तो 0 to hour, 0 to जब आप लिखते हैं ना तो you are showing time and here it is the difference only. फिर then they say that Sonia walks to her aunt house. She leaves home at 10:25. She walks a total of 12 kilometers at an average speed of 5 kilometers per hour. So it means that distance is given and speed is given. Work out the time. Time find करना है. तो एक ही फॉर्मूला P1 में टेस्ट होता रहेगा बार बार. Speed is equals to distance divided by time. स्पीड कितनी है बेटा? 5. डिस्टेंस कितना मैंने 12. टाइम इधर आ गया, टी इधर गया और 5 इधर. 12 डिवाइड बाय 5. डेसिमल में आंसर करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो ताकि नीचे 10 आ जाए. तो ये आ गया बेटा 24/10. 24/10 कितना होता है बेटा? 2.4. एम आई राइट और रॉन्ग? सो अब वो कहते हैं कि शी वॉक्स अ टोटल ऑफ 12 किलोमीटर. अब वो बाय वॉक जा रही है. अच्छा, शी इज नॉट ट्रैवलिंग इन अ कार और अ बस और किसी और चीज पे नहीं. सो यू हैव टू जस्ट add 2.4 hours. And what is 2.4 hours? First of all, you need to understand this is 10 hour 10:25 is the departure time. Departure time is 10:25. 2.4 hours, you cannot write 2.4 ke 2 hours or 4 minutes add kar do. It's not 2.4, it's zero point 0.4. We have to check what is 0.4. 0.4 of an hour, it would be 4 over 10 of 60. It is 6 4s are 24. It means that it is 2 hours and 24 minutes. So just add that 2 hours and 24 minutes. So 5 plus 4, 9, 2 plus 2, 4, 10 plus 2, 12, 49. So this is 12:49 is the time of arrival at her aunt house. क्वेश्चन 10 भी हो गया. क्वेश्चन ये तो है नहीं, ये भी नहीं हो गया, ये भी हो गया. ये रह गया बेटा क्वेश्चन. देख लो जरा क्वेश्चन में, गिलास पानी पी लो. क्वेश्चन देख लो इतनी देर जरा, इतनी देर तक मैं करता हूँ. अच्छा, आखिर में क्लास बंद नहीं करना क्योंकि मैं थोड़ी सी मार्किंग स्कीम जो है ना वो डिस्कस जरूर करूंगा ताकि आपको आइडिया जो है ना वो क्लियर हो जाए. ठीक है, चलें जी, स्टार्ट करते हैं. बेटा वो कह रहा है द डिसलेरेशन ऑफ द कार बिटवीन t to 140 and 200 to t200 is 0.2 meter per second square. Find the value of v. First of all, understand the question that the diagram shows is the speed time graph of the car journey. तो ये क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे? The speed is increasing, here the speed is constant and here this is speed is decreasing. मतलब उसने अप्लाई किया ब्रेक्स को, अब वो स्लो डाउन कर रहा है कार को. Deceleration of the car between t to 140 and t to 200 is 0.2 meter per second square. Find the value of v. You have the deceleration available. ठीक है, so इसका मतलब है कि you have this thingy which is 0.2.
This is 60. So you need to find out this thing, that what is the answer for here as well. So what we know that 0.2, it should be equals to rise divided by run. Rise is v and run is 60. So v is equals to 0.2 times 60. तो 0.2 टाइम्स 60 कितना होगा? 2/10 टाइम्स 60. 0 कटा, 6 2 ज़ा 12. v की वैल्यू मेरे पास 12 आ रही है. व्हाट डू यू थिंक? v की वैल्यू आ गई बेटा 12 यहाँ पे. अभी कैसे निकाला है? जिसको समझ नहीं आती समझ डाल लो बस. ये देखो बेटा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है. ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ग्रेडियंट में बस ऑलरेडी सिखाया हुआ. तो याद रखो कि स्पीड हो जाए या एक्सेलरेशन हो जाए, राइज डिवाइड बाय रन की टेक्निक से निकाल लेना, ठीक है. इट वॉज मेंशन हियर कि डीसेलरेशन है, ठीक है. तो इसीलिए उन्होंने 0.2 के साथ नेगेटिव का साइन नहीं लगाया. अगर यहाँ पे होता ना फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार बिटवीन टी 140 टू 200 इज माइनस 0.2, तो फिर आपको खुद समझना था कि ये डीसेलरेशन है, ठीक है. अब वो क्या कह रहा है? द कार ट्रेवल्स अ टोटल ऑफ 1800 मीटर इन द 200 सेकेंड्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ टी. हमें टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास वी आ गया है, तो मैं वी की जगह पे यहाँ पे 12 लिख दूंगा, ठीक है. हमें वी को फाइंड आउट करना है, टी को फाइंड करना है भी, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी वन थिंग दैट दिस शेप इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू शेप्स. मैं इसको दो शेप्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ. एक तो ये बना लिया मैंने, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, और एक ये बना लिया. ओके, दो शेप्स में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. उन्होंने खुद ही कह दिया था कार ट्रेवल टोटल ऑफ 1800 मीटर. तो टोटल एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है ना, दैट वो आपका आंसर होता है. अब ये चीज सर समझ डालो थोड़ा सा कि यहाँ पे टोटल 1800 आंसर उन्होंने दिया हुआ है. तो हम वी कैन फाइंड आउट दिस शेप बिकॉज वी नो दैट कि हमें यहाँ पे इसको आइडिया क्लियर करना है कि हमें इसका एरिया निकालना है. अब एरिया निकालने के लिए हमें थोड़ा सा बीच में फिगर को एक्सट्रैक्ट करके समझ डालनी पड़ेगी कि हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं. तो हमारे पास हाइट ऑफ द ट्रपीजियम भी मौजूद है, ठीक है. अभी हम लोगों ने इधर थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करना है कि ये आपके पास है 0 और ये है टी. ये है 12 और ये भी है 12. ये भी है टी. यहाँ पे है आपके पास 140 और यहाँ पे है आपके पास 200. अब जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि हमें टी तक निकालने के लिए यहाँ पे एरिया को यूज करना पड़ेगा. तो एरिया को इस्तेमाल करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हमें या तो ट्रेपीजियम के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे या ट्राइंगल के फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे अंडरस्टैंड जरूर करें कि हम लोगों ने यहाँ पे किस चीज के फॉर्मूले को आपने अप्लाई करना है, ठीक है. मल्टीपल वर्किंग्स की जा सकती हैं. मल्टीपल वर्किंग्स करने के बाद ही आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा. नाउ लेट्स सी. वी नो दैट दिस इज टी. एग्री. दिस इज ऑल्सो 200. दिस इज 140. तो यहाँ पे अभी हम लोग इनके नाम भी दे सकते हैं. आप लोग इनके नाम भी दे सकते हो, ठीक है. कि यहाँ पे ये 12 है, ठीक है. दिस इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल. ये क्या है बेटा? यहाँ तक दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम 0 to t. तो यहाँ तक डिस्टेंस क्या है आपके पास? इट इज t-0. तो टेक्निकली दिस इज t. तो हम इसको x का नाम दे देते हैं कि यार दिस इज x. एग्री दैट दिस प्लेस इज x. दिस प्लेस इज व्हाट? 200 माइनस x. ये प्लेस हो गई आपके पास 200 माइनस x. ओके. ऊपर आपके पास क्या है? ऊपर वाली सिचुएशन देखें. ऊपर वाली सिचुएशन देखें. ये ऊपर वाला जो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये आपके पास कौन सी बनती है? ये चीज अंडरस्टैंड कर लें. अच्छा, हम लोग यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं कि हम लोग इस ब्लू ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं. वैसे हम लोग ब्लू ट्राइंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं. और क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी नहीं है, तो याद रखिए कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन में आप लोग जरूर स्टक हो सकते हैं. तो यू हैव टू डू अ मल्टीपल अप्रोचेस कि आपने इसको किस तरीके से करना है. याद रखिए बीइंग अ टीचर हियर, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बैठा कि मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करके जाता रहूँ, ठीक है. मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. आप इसके मल्टीपल वेज तैयार करेंगे. ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी पेपर में मिलता है, लाइक लेट्स सपोज लेट मी इरेज द डायग्राम, जब भी पेपर में क्वेश्चन मिलता है तो याद रखें द कार ट्रेवल्स अ टोटल ऑफ डिस्टेंस. जब भी इस क्वेश्चन में बात हो तो एरिया अंडर द ग्राफ की सिनेरियो होती है. एरिया अंडर द ग्राफ. अब उन्होंने खुद ही कह दिया है कि टोटल ट्रेवल किया है 1800 मीटर 200 सेकंड्स में.
अब मेरे पास यहाँ पे सब कुछ मौजूद है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे टी की वैल्यू नहीं है, तो मुझे यहाँ पे टी की वैल्यू जो है ना वो निकालनी है। तो अब मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैं इस बड़े ट्रेपीजियम को ले लेता हूँ, लेट्स से अगर मैं यहाँ से इस बड़े ट्रेपीजियम को ले लेता हूँ, और अगर आप में से कोई बच्चा इसको इस तरीके से खाली क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो उसको क्या मिलेगा एग्जामिनर की तरफ से? ठीक है, ये हाइट आपके पास ट्रेपीजियम की, और वो 12 आई है, आपने निकाल लिया खुद ही, एस एस 12, ये हाइट हो गया आपके पास। अच्छा, ये वाला यहाँ पे भी डॉटेड लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 200, कॉर्नर में लिखा है आपके पास 200, और यहाँ पे लिखा है 0। इसका मतलब है कि आपके पास ये पैरेलल लेंथ मौजूद है, यू हैव दिस पैरेलल लेंथ ऑलरेडी। नाउ दिस पैरेलल लेंथ इज व्हाट, ये क्या चीज है, ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। यहाँ पे एक वैल्यू आपके सामने नजर आ रही है 140, और यहाँ पे लिखा है टी। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इस वैल्यू को क्या कंसिडर कर सकते हैं? इसका मतलब है ना कि टोटल में से आपको अगर ये दोनों पीस आप माइनस कर दो तो ऊपर वाला पीस आपके पास आ जाएगा। एग्री और नॉट, यस और नो? तो मुझे, ये मेरा L1 हो गया, लेट्स से दिस इज माय L2, ये हाइट, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू L1 प्लस L2 इंटू हाइट। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम 1800 है, 1/2 इंटू L1 क्या है, L1 तो 200 है, वो तो क्लियर है हमें, 200 प्लस, अब L2 में कैसे निकालूं? सॉरी, L1 मैंने उसको नाम दिया हुआ है, तो L1 पहले लिखते हैं फिर हम लोग। मैंने उसको L1 बताया आपके सामने, तो इसको मैं चेंज कर, उप्स सॉरी, इसको मैं L1 कर देता हूँ, ये L2 हो गया, ये L1 हो गया। L1 जो है ना बेटा मेरे पास 200 है। अब L2 क्या है मेरे पास? L2 जो है बेटा 200 में से हम लोगों को ये भी माइनस करना है, ये वाला पीस, 200 में से हम ये पीस भी माइनस करेंगे और ये पीस भी माइनस करेंगे। अब 200 में से ये दो पीस क्या है, एक पीस है 60 का और एक पीस है टी का। तो मैं माइनस करता हूँ, 200 माइनस 60 माइनस टी, और यहाँ पे मेरे पास हाइट है 12। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 3600 इज इक्वल्स टू 200 प्लस 200 माइनस 60 आता है हमारे पास 140, 140 माइनस टी मल्टीप्लाई विद 12। अब 12 को वहां पे ले जाकर डिवाइड कर दें आप, तो ये हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 340 माइनस टी। 3600 को बेटा 12 पे डिवाइड करें तो 300 आता है, 300 इज इक्वल टू 340 माइनस टी, टी को इधर लिए, t is equals to 340 minus 300 is equals to t is equals to 40। तो t की वैल्यू आपके पास आ रही है 40। तो मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं, जो भी अप्रोच आपको इजी लगे आप लोग उसको इसी तरीके से खत्म करें। तो t का आंसर आपके पास आ गया 40। चलें अभी देखते हैं कि क्या रह गया हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन 20 रह गया। आप जरा क्वेश्चन 20 जो है ना ये समझ डालें, P1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। They say that a plan of a house is drawn to scale 1:50। Okay, ये scale है 1:50। Okay, on the plan the floor area of the kitchen is 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्लोर एरिया जो है ना वो प्लान में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वन वन सेंटीमीटर ऑन मैप रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स 50 सेंटीमीटर इन रियलिटी, ये रियलिटी में होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ऑन द प्लान द फ्लोर एरिया ऑफ द किचन इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है फ्लोर एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एरिया के लिए स्केल निकालना है, तो एरिया के लिए स्केल निकालने के लिए 1:50, तो आप इसको स्क्वायर कर लो, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर के लिए स्केल बन गया, तो ये हो जाएगा 1:2500। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1:2500। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्लोर एरिया ऑफ द रियल किचन एंड गिव योर आंसर इन स्क्वायर मीटर्स। हमने स्क्वायर मीटर में आंसर देना है, सेंटीमीटर में नहीं। तो पहले मीटर में और सेंटीमीटर में फाइंड कर लेते हैं। तो मतलब क्या होगा, दैट 30 इक्वल्स x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 2500। तो
3 into 25 is 75,000,000. ओके, अब वो हमारे पास आ रहा है 75,000। अब 75,000 आ रहा है, अब हमें आंसर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये आंसर हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो बेटा 1 मीटर ये बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। स्क्वायर करें स्केल को, तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर बराबर होगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो इसका मतलब है कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर डिवाइड करना है। जब 10,000 पे आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 7.5, क्योंकि 3 जीरोस कट जाएंगे और 7.75 डिवाइड बाई 10 इज 7.5। तो यहाँ पे हो गया बेटा ये हमारा एक पूरा ईयरली पेपर खत्म। कोई क्वेश्चन नहीं रहता, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्किंग स्कीम डिस्कस करना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा, क्योंकि बाद स्टूडेंट्स को ज़रा क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी होता है, बीइंग टीचर ही है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ कि कैम्ब्रिज की वेबसाइट से मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया था। तो आई होप पेपर्स तो सबको डाउनलोड करने आते ही हैं। अच्छा, 1 2 and 2 1, तो 1 2 मार्किंग स्कीम डाउनलोड। अच्छा जी, ये मार्किंग स्कीम हो गया। अच्छा जी, मार्किंग स्कीम में दो तीन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ये पहला कहता है करेक्ट आंसर ओनली, इसको कहते हैं करेक्ट आंसर ओनली। दूसरा है डीईपी, जब मार्किंग स्कीम में लिखा हो डिपेंडेंट के आपका आंसर इस वर्किंग के ऊपर डिपेंड कर रहा था। एफटी का मतलब है फॉलो थ्रू आफ्टर एरर, कि आपने कोई एरर किया और उसके बाद उस एरर को कंटिन्यू किया। आईएसडब्ल्यू मीन इग्नोर सब्सीक्वेंट वर्किंग, इसका मतलब है कि आपने बार बार एक ही वर्किंग की है या कोई फालतू वर्किंग की है तो उसको इग्नोर करेगा एग्जामिनर। ओई का मतलब है और इक्विवेलेंट, या अगर आपने फॉर एग्जांपल 7/10 को 0.7 लिखा है तो इट्स सेम थिंग। एस सी का मतलब है स्पेशल केस, कि अगर क्वेश्चन में बच्चे ने, अगर एक बच्चा जो है वो क्वेश्चन ही उसने गलत रीड किया और उसने गलत क्वेश्चन को अप्लाई करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका आंसर ठीक आ रहा है आखिर में, तो एग्जामिनर इस ऐसे क्वेश्चंस को, बाज़ बच्चों को स्पेशल केस भी देते हैं कि यार इन्होंने क्वेश्चन जो है वो गलत लिखा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे x² प्लस 5x माइनस 10 था और मिड टर्म ब्रेक करना था और आपने x² माइनस 5x प्लस 10 किया और क्वेश्चन ठीक किया है, तो एग्जामिनर SC दे सकता है आपको। एनफी NFWW नॉट फ्रॉम अ रॉन्ग वर्किंग, एंड SOI सीन और इम्प्लाइड के आपको नजर आ जाए। पहले क्वेश्चन का आंसर था 0.015 और इक्विवेलेंट लिखा हुआ है कि आप इसको फ्रैक्शन में भी दे सकते थे, तो 1 मार्क। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 37/15 और मिक्स फ्रैक्शन, तो दोनों में दे सकते थे। M1 फॉर यूज ऑफ करेक्ट कॉमन डिनोमिनेटर, अगर आपके डिनोमिनेटर करेक्ट है तो आप वो भी, उस पर भी नंबर मिल जाएगा। फिर आंसर है 3 और काइट, हमने भी दिया। फिर आंसर है क्यूब रूट 4³ 9² ओके। B1 फॉर 3 करेक्ट, अगर 4 है तो 4 में से 3 करेक्ट होंगे तो एक नंबर मिलेगा। 17/25 इसके आगे देखो लिखा हुआ है ना CAO, करेक्ट आंसर ओनली, अगर आपने इसका आंसर 34/50 या 68/100 लिखा है तो 0 मार्क्स। 3/8 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इट्स फाइन। 360 एंड 9 0.9 अगर आपका एग्जामिनर देखा तो 1 मार्क, और फाइनल आंसर 1/2 होगा तो 2 नंबर पूरे। फिर एंगल्स की बारी आ रही है तो 0 to 5 ओके। फिर आंसर था 40। अब उसके अंदर भी कोई M1 देना है उसने आपकी वर्किंग के ऊपर। अच्छा, फिर यहाँ पे 5 एंड 3a - x, वी बोथ हैव द सेम आंसर्स, ब्रैकेट आगे पीछे है खाली। अच्छा, इट्स अ नेगेटिव हमने भी लगाया, रूल्ड लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमने लगाया, और उन्होंने देखो रेंज दिया है यहाँ पे 136 to 140, मेरा आंसर 137 है। अच्छा, फिर उन्होंने नेक्स्ट कहा है 85, देखें 85 मैंने आईपैड पे किया, 85 मेरा भी आया हुआ, यहाँ पे भी आया हुआ। सी इज पोजिशन करेक्टली, अब ये बिल्कुल करेक्टली प्लॉट है, हमने चेक किया था इसको। फिर 2 hours and 13 minutes, दैट इज फाइन। 12:49 दैट इज ऑल्सो फाइन। 5.5 और इक्विवेलेंट इट्स फाइन। अच्छा, 26/25, अच्छा 1 into 1/25 जो है ना मिक्स फ्रैक्शन में लिखा था खाली, मतलब इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो ये कुछ ऐसा होगा। 25 1s are 25 एंड 25 प्लस 1 इज 26। तो एक ही बात है कि उन्होंने OE लिखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन 12 तो था ही नहीं हमारे कोर्स में, तो क्वेश्चन 13 हमने किया है। किधर गया क्वेश्चन 13, ओके। सो 2² 3³ ठीक है। 540 इज एन आंसर, ठीक है। 9.75 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 ये भी ठीक है।
अच्छा, एक बच्चे ने ये सवाल पूछा 130, 131 और 150, तो 131 हमारा आंसर है। ठीक है। अच्छा, एक बच्ची ने मुझसे भी क्लास के दौरान सवाल पूछा कि सर ये मुझे बताएं कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये वाले हैं या ये वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज अंडरस्टैंड करें, यहाँ पे लाइंस जो है ना उन्होंने सॉलिड लगाई हुई हैं। ठीक है। सॉलिड लाइन का मतलब होता है कि आपकी इनइक्वालिटी जो है ना वो ये वाली है, और डॉटेड लाइन हो तो इसका मतलब है कि ये वाली इनइक्वालिटी है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। ओके, हमारा भी यही है, क्यू अंदर आर बायर। ओके, 48 एंड एन स्क्वायर प्लस 5n-2, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब देखिए, एन स्क्वायर माइनस 3 मार्क का क्वेश्चन था, तो अब उन्होंने क्या किया है, B2 फॉर आंसर फॉर एन स्क्वायर प्लस 5n+k। अगर आपने किसी ने लिखा है ना कि एन स्क्वायर प्लस 5n, तो तब भी 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपको नजर आ रहा है। और हम लोगों ने देखी ये 5n-2 की वर्किंग की थी ऊपर कॉर्नर में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 के करेक्ट आंसर्स हैं 12 एंड 40, वी गॉट द सेम आंसर्स। और वो देखिए उनकी भी सेम वर्किंग है, 1/2 L1 प्लस L2 मल्टीप्लाई बाय देयर 12। ओके, देन उन्होंने कहा कि P और वो बनाई, तो 3P वेक्टर हमारा भी वैसा ही है और Q-B हमारा भी वैसा ही है। ओके, देन वी हैव 7.5, या दैट्स फाइन। x⁻9/8, दैट इज ऑल्सो फाइन। अच्छा, 12 - x/4 और 3 अच्छा, अगर आप में से किसी ने 12 4 को इसके नीचे अलग अलग भी किया, दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, और लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 10/9। अच्छा, ये g(x) = 6, या वो 10/9 ये तो हमने एक्स्ट्रा किया पार्ट सी। क्वेश्चन 23 इज दिस वन, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब देखिए, यहाँ पे किसी बच्चे ने एक्सपैंड अगर किया हो तो ऐसी फजूल का टाइम जाया होता है, नो नीड टू एक्सपैंड, दिस इज फाइन, अब इसी में छोड़ दो। अच्छा, -8 और ये हो गया 19, ये भी ठीक हो गया। क्वेश्चन पेपर खत्म। चलें जी, थैंक यू सो मच, इट वाज अ नाइस क्लास। आई विल शेयर द PDF ऑफ द क्लास। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय हाफिज़।